Hello children, you are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Kadawara. This is Amit Toshniwal. This video is for class 12th. Subject is economics. Chapter number 3, demand and elasticity of demand. Let us understand the meaning of demand first. What is demand? In economics, demand never refers to desire or necessity until and unless it has got sufficient resources and willingness to buy by the purchaser. Moreover, availability of commodity is required. So we can draw out 4 essentials of demand here. First, desire of commodity. Second, enough resources. Third, willingness to purchase. And fourth is availability. Okay. Now on your screen you are seeing some definitions of demand, and almost all the economists are at consent. They come to the conclusion that any demand must have these 4 essential features: desire, sufficient resources, willingness, and availability. Okay. So demand has got 2 types. First, individual demand. Second, market demand. So individual demand refers to those quantities of commodity which an individual consumer buys at a particular time at different alternative prices in a market. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है किसी पर्टिकुलर टाइम में, और उसकी जो भी मार्केट में प्राइस है वो उस पर उसको लेने के लिए वो तैयार है. ठीक. So this can be understood with the help of individual demand schedule and individual demand curve. So demand schedule means tabular form of demand, and demand curve means it's a graphical representation. So you might be seeing one table and one graph on your screen. Okay. So this table depicts that when the prices of milk high, then demand for that commodity for milk is low, and as the price decreases, the demand for milk per month increases by the buyer. So the price and demand has got inverse relationship between them. मतलब जैसे जैसे प्राइजेस कम होती जाएंगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. तो जो टेबल में है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है. आप देखिए पॉइंट डी, ऊपर लिखा है डी मतलब डिमांड लाइन. ठीक है. तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट डी देखिए, जब प्राइजेस 12 रुपये हैं तो उस पॉइंट के सामने नीचे देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर 10. एज प्राइजेस फॉल्स टू ₹10, demand already increases and reaches to 20 liter per month, and so on. So it has got downward sloping graph. Understand? Now we will have a look what are the determinants of individual demands. मतलब individual demand को determine करने वाले कौन कौन से factors होते हैं. सबसे पहली चीज़ है price of commodity. So as I said कि there is an inverse relationship between price and quantity demanded. It means when there is an increase in commodities price, the demand for it falls, and when there is a decrease in commodity price, then the demand for it rises. So this is a very important factor regarding this. Second point, change in price of substitute goods. हर एक चीज़ का सब्सटीट्यूट होता है. चाय का कॉफ़ी हो गया आपके पास. ठीक है. आपको चपाती नहीं मिल रहा, यू कैन टेक राइस टू फिल योर हंगर एपिटाइट. आपकी भूख को ख़त्म करने के लिए यू कैन हैव एनीथिंग एल्स. लाइक यू आर नॉट गेटिंग लाइम जूस, देन यू कैन हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो हर एक चीज़ का सब्सटीट्यूट है. तो सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब है जो रिप्लेस कर देती हैं एक दूसरे को और वो सेटिस्फाई करती हैं किसी पर्टिकुलर वांट को. तो इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ
substitute, there will be an increase in demand for another and vice versa. Understand? So it is directly affected by the change in price of substitute commodity. तो सब्सटीट्यूट कमोडिटी का प्राइस भी उसकी किसी वस्तु की डिमांड पे जो है फ़र्क डालता है, एक बहुत गहरा अंतर डालता है। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी एक के बिना दूसरे का काम ना चले, लाइक पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रिक एंड सीमेंट एट्सेट्रा, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। ब्रेड एंड बटर, टी एंड शुगर। तो जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों के रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे फॉल इन डिमांड हो जाएगा गिवन कमोडिटी में। यानी कि there is an inverse relationship between the change in price of complementary goods and demand for goods to be used together. दोनों में से किसी एक का रेट बढ़ेगा तो दूसरे की जो डिमांड होगी वो धड़ाम हो जाएगी, और यदि रेट नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी डिमांड जो होगी वो पीक पर पहुंचने लगेगी, ऊपर चढ़ने लगेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो सारी चीज़ें पैसे से ही है ना, यदि जेब में गर्मी है तो सारी चीज़ें खरीद लो, फटे हाल है तो क्या चीज़ खरीद सकते हैं, सिंपल सा है। तो मतलब क्या हुआ, इनकम ऑफ कंज्यूमर पुट्स अ वाइटल इम्पैक्ट ऑन डिमांड। जब इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों से काम चला रहा था, अब उसे बाकी की दूसरी चीज़ें भी चाहिए जो उसे कंफर्ट या लग्जरी लगती हैं, तो वो नेसेसिटीज़ से निकलकर बाहर की तरफ भागेगा, कंफर्ट की तरफ आएगा। यदि कंफर्ट में होगा तो फिर वो लग्जरियस की तरफ भागेगा। इज़ इट? फिर ऐसा कब होता है, जब कोई वो नॉर्मल चीज़ होती है। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं कि जब कोई इन्फीरियर गुड्स है मान लो, है ना, तो इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम रिड्यूसेस द डिमांड फॉर सच कमोडिटी एंड डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर सच कमोडिटी। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या हुआ, जो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर वो ब्रांड वाली चीज़ें सोचेगा। अभी वो नॉर्मल जीन्स पहन रहा था, अब उसे लेवाइस का चाहिए, लॉमैन का चाहिए, है कि नहीं, किलर का जीन्स चाहिए। क्यों? क्योंकि जेब में गर्मी है, तो उसके लिए बाकी की जीन्स कैसी हो गई, इन्फीरियर। तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो क्या होगा, जो उसको बाकी की चीज़ें इन्फीरियर, घटिया लगेंगी, सस्ती लगेंगी, नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है, ये मैं ये नहीं पहन सकता अब। तो क्या करेगा वो, इन्फीरियर गुड्स के लिए उसकी जो डिमांड होगी दैट विल डिक्रीज। वेयर एज in case if everything is normal, then in that case income of consumer also will increase in demand for such commodity, and fall of income of consumer, then there will be a reciprocal fall in the demand for such commodity. Understand? तो दो तरीके से इनकम इफेक्ट डालती है। पहला, वो नॉर्मल था लेकिन उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो वो ज़्यादा चीज़ों के लिए डिमांड करेगा, लेकिन इन केस यदि कुछ ऐसी कोई दूसरी बात होती है तो फिर वो नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो मूड, टेस्ट और प्रेफरेंस हमेशा एक सा नहीं रहता, है ना, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। अब कैसे एक सा नहीं रहेगा, फैशन में चेंज होते हैं, कस्टम्स में चेंज होते हैं, हैबिट्स में चेंज होते हैं, टेस्ट में चेंज होता है, उसका जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में है वो ज़्यादा प्रेफरेंस में आएगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी, और पुरानी चीज़ों के लिए वो डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। और यदि मान लो कोई चीज़ फैशन में है लेकिन उसका टेस्ट, रुझान उस तरफ नहीं है, उसकी हैबिट में नहीं है, सो ही विल नॉट यूज़ इट इवन इट इज़ चीप। यदि वो सस्ती भी है तो भी वो उसको यूज़ में नहीं लेके आएगा। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, होप ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। यदि भविष्य में चीज़ों की कीमतें कम या ज़्यादा होने वाली, यदि कम होने वाली हैं तो आज डिमांड कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ही विल वेट फॉर दैट टाइम टू प्राइजेस कम डाउन, वो उस समय तक के लिए वेट करेगा। तो आज प्रेजेंट में जो डिमांड होगी वो कम रहेगी। बट इफ़ देयर इज़ अ होप ऑफ राइजिंग प्राइस इन फ्यूचर, तो क्या होगा, उससे बचने के लिए वो आज के आज ही सारे कंज्यूमर्स उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे।
तो प्रेजेंट डिमांड जो होगी दैट विल बी एट पीक, वो हाईएस्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन ए स्क्रीन यू माइट बी सीइंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब ये दोनों अलग अलग हैं, एक सी बातें नहीं है ये, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, है ना। तो जब प्राइस में चेंज हो जाने के कारण किसी वस्तु के जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो यदि चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अंडरस्टैंड? और चेंज इन डिमांड प्राइस का इफेक्ट नहीं होता उस पर, किसी दूसरे कारण से होती है चेंज इन डिमांड। तो जो मेन मुद्दे की बात है वो एक ही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए उस वस्तु की कीमत खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंड करता है, और चेंज इन डिमांड जो है वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस। तो एंटायर डिमांड ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ मार्केट इज नोन एज डिफरेंट मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ, जितने लोग हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो डिमांड उनका टोटल कर दिया जाए। अब आप नीचे एक टेबल देखो, आपको दिख रहा है प्राइजेज ऑफ मिल्क इन लीटर एंड डिमांड ऑफ लीटर पर मंथ। तो ABCD 4 लोग दिए गए हैं आपको, ABCD 4 लोग हैं। तो जब 12 रुपये उसकी प्राइस है तो A डिमांड कर रहा है 2000 लीटर्स, B 3000, C 3000 और D 2000। टोटल डिमांड कितना हुआ 10। फिर ये टोटल हो गया डिमांड, तो टोटल डिमांड मतलब मार्केट डिमांड हो गया। फिर प्राइजेस कितना हो गया 10। A is demanding 4000, B 6000, C again 6000 and D 4000. टोटल हुआ 20,000. So 20,000 is market demand. The aggregate, the total, the sum of all the demands by different individuals, its sum is called total of all consumers. डिमांड स्केड्यूल को जब हम टोटल कर देंगे तो उसको कहेंगे अपन मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड भी जो है वो कैसी होगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा, जैसा इसका होता है इंडिविजुअल डिमांड का। मतलब ये भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इसका स्लोप जो रहेगा वो डाउनवर्ड्स ही रहेगा। कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि मार्केट डिमांड बनी किससे है, इंडिविजुअल डिमांड से। तो जैसा इंडिविजुअल डिमांड रिस्पॉन्स करेगी, बिहेव करेगी, वैसा ही मार्केट डिमांड करेगी, क्योंकि मार्केट किससे मिलकर बन रहा है, कंज्यूमर्स से। ठीक है, और इसके भी जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स भी ठीक वैसे ही रहेंगे, उसके सारे पॉइंट्स भी ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि अपना इंडिविजुअल डिमांड के रहते हैं। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हैबिट्स एंड फैशंस, एंड कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ये एक नया पॉइंट इसमें आ गया। यदि मान लो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। पहले 10 लोग थे तो 10 लोग डिमांड कर रहे थे, अब पॉपुलेशन हो गई 20, तो डिमांड जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यदि कोई कंट्री मान लो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है तो क्या होगा, डिमांड फॉर नेसेसरी आर्टिकल्स विल इंक्रीज एंड लग्जरियस के लिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है। डिमांड 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, 4 एसेंशियल्स होना चाहिए, डिज़ायर, रिसोर्सेज, विलिंगनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो फिर रिसोर्सेज नहीं बचे ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेसेसरी आर्टिकल्स के लिए हाई और लग्जरियस के लिए वो हो जाएगी कम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यदि वो इक्वल है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, then demand of almost all the commodities will be the same proportion, but the percentage of poor people is higher. तो फिर क्या होगा, नेसेसरी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि गरीब आदमी तो पहले रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 5 चीज़ें वो पहले चाहेगा, फिर बाकी की चीज़ों पर उसका ध्यान जाएगा। ठीक है,
एक्सपेक्टेड चेंज मतलब फ्यूचर में चेंज होना, जैसा कि हमने आपको इंडिविजुअल वाले में बताया था। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट डिमांड के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो वूलन क्लॉथ्स हैं, तो वूलन क्लॉथ्स की जो डिमांड रहेगी वो कब रहेगी? केवल ठंड के समय। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लगभग 12 महीने ठंड पड़ती है, लेह लद्दाख वगैरह यहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, है ना। और हॉट एरियाज़ में जैसे सदर्न इंडिया हो गया, साउथ इंडिया आपका हो गया, वहाँ पर क्या होगा? हॉट एरियाज़ हैं ये, तो वहाँ पर कॉटन क्लोथ्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और वो लोग तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी मार्केट को अफेक्ट करती हैं, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब इसके फंक्शंस कैसे बनते हैं, वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू राइट ऑल दीज and I will explain you functions in later video.